Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are fit and fine. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 53 as I'll be continuing with exercise 2 of unit 14, simple present tense. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 53 as I'll be continuing with exercise 2 of unit 14, simple present tense. Students, in my last video, I had started with exercise 2, that is fill in the blanks with right form of the verbs in the simple present tense, and we had done the first 4 sentences of this exercise. Now, before I start with the fifth one, let's revise the first 4 sentences of this exercise. Exercise 2 on page 53. Fill in the blanks with right form of the verbs in simple present tense. The first one, she dashed for a walk after dinner, and the verb given in the bracket is go. In this sentence, students, the subject is she, which is singular. So, we will add es to the root form of the verb go. So, the word in the blank will be goes, that is G-O-E-S. And our sentence will be, she goes for a walk after dinner. Second, students, dash quiet when the teacher explains the chapter, and the verb given in the bracket is keep. In this sentence, the subject is students, which is plural. So we'll be writing the root form of the verb as it is in the blank, that is keep, K-E-E-P, keep. So our sentence will be, students keep quiet when the teacher explains the chapter. The third one, birds dash eggs in their nest, and the verb given in the bracket is lay. Students, in this sentence, the subject is birds, which is plural. So, when the subject is plural in simple present tense, we write the verb as it is in the root form. So, we'll write the verb lay as given in the bracket, in the blank also, that is L-A-Y, lay. So, our sentence will be, birds lay eggs in their nest. Then the fourth one, the clock dash time, and the verb given in the bracket is show. In this sentence, students, the subject is the clock, which is singular. So we'll be adding s to the root form of the verb show. So the word in the blank will be shows, that is S-H-O-W-S, shows. So our sentence will be, the clock shows time. Now students, the fifth one, I dash my hands with a soap, and the verb given in the bracket is wash. Children, the fifth one is, I dash my hands with the soap. In this sentence, students, the subject is I. And you all need to keep in mind, if the subject is I, you, we, they, or any plural, बेटा आपको ये वर्ड्स याद रखने, अगर सब्जेक्ट में आपके आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या कोई प्लूरल मोर देन वन सब्जेक्ट हो, एंड सब्जेक्ट कौन होता है बेटा सेंटेंस में? द वन हु डज द एक्शन, द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन इज द सब्जेक्ट. और अगर सब्जेक्ट आपका अगर आई हो, यू हो, वी हो, दे हो
या प्लूरल। प्लूरल मतलब कोई भी प्लूरल वर्ड जो मोर देन वन बताता है। उसमें आपको हमेशा याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी नीड टू यूज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा? आई है। आई है तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब as it is we will write. So our sentence will be I wash my hands with a soap. So you need to keep in mind कि अगर आपका सब्जेक्ट I हो, you हो, we हो, they हो या anything plural, तब आप उसमें root form of verb as it is लिखेंगे. This is the rule of simple present tense. This is known as the subject verb agreement, है ना? सब ये आप थोड़ा सा इसको याद कर लो. If the subject is I, you, we, they, plural, इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपका जो वर्ब है जो ब्रैकेट में as it is है वो आप as it is लिखोगे. This is known as the root form of the verb. So you need to keep this in mind. Fine. Now, if I write the same sentence as, let's take the example of something else. Let's take it as Ansh. Ansh dash his hands with a soap. Fine. And the next example is Ansh and Summer dash their hands with a soap. Now I have taken two different examples to make you understand. Now in this sentence, the first one, Ansh dash his hands with a soap. यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अंश आपका सब्जेक्ट है एंड अंश क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन. एक पर्सन का नाम अंश है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें हम वॉश रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रैकेट में दिया है उसमें हम es लगा देंगे. अंश washes his hand with the soap. Fine. Now अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में अगर अंश एंड समर है, दो है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल. दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज प्लूरल. अंश एंड समर, यहाँ पे हम दो लोग के बारे में बात करें. यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था अंश, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है. वी आर टॉकिंग अबाउट अंश एंड समर. सो अंश एंड समर dash their hands with soap. तो यहाँ पे हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज लिख देंगे. ये आपको याद रखना है कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आप इसमें जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें एस या es लगाएंगे. वेयरएज अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मोर देन वन है, तो हम इसको रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज वी विल राइट. So I hope all of you have written wash in the fifth blank. सबने wash लिखा है. Now I'm going to erase this, children, and write the sixth one. Everybody has written I wash my hands with the soap. Before I erase this, once again, let's revise. If the subject is I, you, we, they और any plural, हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज लिखेंगे. नाउ
46th one. A porter dash our luggage at a railway station. And the verb given in the bracket is carry. This is the sentence. A porter dash our luggage at a railway station. I hope all of you know the meaning of porter. बेटा पोर्टर कौन होता है? सब लोग ट्रेन में ट्रैवल किए हैं, है ना, सब ट्रेन में बैठे हैं. आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आपको रेड शर्ट पहन के जो कुली दिखता है, कुली को ही बेटा पोर्टर बोलते हैं, है ना. कुली आपका जो लगेज है वो कैरी करता है, बहुत सारा लगेज होता है ना. और लगेज हमसे नहीं उठ पाता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? हम कुली की हेल्प लेते हैं. तो बेटा कुली को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्टर. फाइन. सो द सेंटेंस इज अ पोर्टर डैश अ लगेज एट अ रेलवे स्टेशन. आप देखो, आप ध्यान से सब्जेक्ट को देखो. अ पोर्टर, पोर्टर के आगे अ लगा है ना. अ लगा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन पोर्टर. हम एक कुली की बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना. हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना. तो अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या सीखा है कि हमारा जो वर्ब है उसमें एस ई एस लगेगा. लेकिन अभी मैं आपको एक चीज और बताऊं. वो वर्ब्स बेटा जिनके लास्ट में वाई होता है ना. फॉर एग्जाम्पल कैरी, ट्राई, फ्राई, है ना, क्राई. ये सारे वर्ब्स के लास्ट में क्या है? सारे वर्ब्स के लास्ट में क्या लगा है? वाई लगा है ना. तो बेटा जो भी वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स. जो भी वर्ब्स जिनके लास्ट में वाई लगा होता है उनको जब हम जब सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ यूज करते हैं तो उनका हम वाई हटा के क्या लगा देते हैं? आई एस. कैरी का क्या हो जाएगा? कैरीज. ट्राई का क्या हो जाएगा? टी आर आई ई एस. फ्राई का क्या हो जाएगा? एफ आर आई ई एस. क्राई का क्या हो जाएगा? सी आर आई ई एस. तो ये आपको बेटा याद रखना है कि जो भी वर्ब्स जिनके लास्ट में वाई आता है और उनका जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसमें एस ई एस लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम उन वर्ब्स के वाई हटा के उसकी जगह हम किसको ऐड कर देंगे? आई ई एस. बेटा ये आपको याद रखना है कि जो वर्ब्स जिनके स्पेलिंग में लास्ट में वाई आता है ना, कैरी है, ट्राई है, फ्राई है, क्राई है ना, ये सारे वर्ब्स के लास्ट में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? वाई है. तो इनका जब इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो इन सब का हम वाई हटा के क्या ऐड कर देंगे इनके लास्ट में? आई एस. कैरी का सी ए डबल आर वाई था स्पेलिंग. इसमें हमने वाई को हटा के क्या लगा दिया? आई एस. तो क्या हो गया? सी ए डबल आर आई एस. ट्राई में टी आर वाई था. अब इसको अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो हम वाई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? टी आर आई एस. फ्राई एफ आर वाई फ्राई है. तो इसमें अगर हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो हम क्या करेंगे? एफ आर आई एस. वाई हटा के हमने क्या लगाया? आई एस. क्राई है सी आर वाई. तो इसको अगर हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो हम इसमें सीधे एस और एस नहीं लगाएंगे. जिस भी वर्ब के स्पेलिंग में लास्ट में वाई होता है और उसको हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो हम वाई हटा के क्या ऐड करते हैं? आई ई एस. फाइन. सो अभी हमारा जो वर्ब है कैरी है, सी ए डबल आर वाई. तो अब अ पोर्टर हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पोर्टर सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा? कैरीज. वाई हटा के क्या लगा देंगे? आई एस. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? अ पोर्टर
carries our luggage at a railway station. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, जो भी वर्ब जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में वाई आता है, जैसे कैरी है, ट्राई है, फ्राई है, क्राई है, इन सब वर्ब्स की स्पेलिंग में लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, वाई आ रहा है। तो इनको जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो हम वाई हटा के उसकी जगह क्या लगा देंगे, आई एस, आई एस, आई एस। तो कैरी का CARRIES, TRY ट्राई का TRIES ट्राइज, FRY फ्राई का FRIES फ्राइज, CRY का CRIES क्राइज। ये आपको याद रखना है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो वर्ब्स बेटा जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में वाई आता है उसमें हम सीधे SES नहीं ऐड करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। उनमें हम क्या चेंज करते हैं, उन वर्ब्स में जब हम उनको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, वी रिमूव दी वाई, हम वाई को ड्रॉप करते हैं और उसकी जगह हम कौन सा वर्ड ऐड करते हैं, कौन सी स्पेलिंग ऐड करते हैं, IES, है ना। कैरी, कैरीज, ट्राई, ट्राइज, फ्राई, फ्राइज एंड क्राई, क्राइज। ये आपको याद रखना है। ये आज के वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है विच यू नीड टू रिमेंबर। फाइन। सो सिक्स्थ वाला हमारा क्या था, अ पोर्टर कैरीज आवर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। नाउ अगर सेम सेंटेंस बेटा आई एम राइटिंग इन अनदर वे, द पोर्टर्स, अगर अ पोर्टर की जगह द पोर्टर्स होता, द पोर्टर्स डैश आर लगेज at a railway अगर सेंटेंस अ पोर्टर की जगह द पोर्टर्स होता है ना, यहाँ पे तो अ पोर्टर सिंगुलर, एक हम पोर्टर की बात कर रहे हैं। बट अगर सपोज दी सेंटेंस वाज दी पोर्टर्स, यहाँ पे तो इस पोर्टर में एस लग गया है, प्लूरल हो गया है, तब हम क्या करते, अगर हमारा ब्रैकेट में हमको कैरी को ही यूज करना होता तब हम क्या करते, ये हमको याद रखना है कि इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज लगाते। तो द पोर्टर्स कैरी आवर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यहाँ पे पोर्टर्स में एस लगा है ना, तो हमको यहाँ पे SES IS नहीं लगाना है। ये आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अगर आपके सब्जेक्ट में एस लगा है तो वर्ब में एस नहीं होगा, सब्जेक्ट में एस नहीं है तो वर्ब में एस होगा। दिस यू नीड टू रिमेंबर। अ पोर्टर सब्जेक्ट है हमारा, है ना, सिंगुलर है, तो हम वाई को हटा के, कैरी की स्पेलिंग में वाई हटा है तो हमने क्या किया, IS लगा दिया, है ना। सो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, पोर्टर कैरीज अ लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। वेयरएज अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता, अ पोर्टर की जगह द पोर्टर्स होता, तो हम कैरी को एज इट इज रूट फॉर्म में लिखते। क्यों लिखते रूट फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। दिस यू शुड रिमेंबर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में SES या वाई हटा के IS लगाना है। दिस यू शुड नो। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन द सिक्स्थ वन, दैट इज अ पोर्टर कैरीज अ लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। All of you have written. Now I'm going to erase this and write the seventh one. Now, the seventh one is spider dash webs, and the verb given in the bracket is spin. Our sentence is spiders dash webs.
हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? स्पाइडर्स। और आप देख सकते हो स्पाइडर्स में एस लगा है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज प्लूरल। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें क्या करना है बेटा? जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रैकेट में दिया उसको एज इट इज लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? स्पाइडर्स स्पिन webs, webs. I'll write another example. अगर होता a spider होता, for example, spider की जगह a spider dash webs. अगर ये होता spiders की जगह बेटा a spider होता, यहाँ पे a spider तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। वे टॉकिंग अबाउट वन स्पाइडर। तब हम क्या करते? स्पिन में हम एस लगाते। फाइन। सो आपको क्या याद रखना है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद रखना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि अगर सब्जेक्ट में एस लगा हुआ है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है उसमें एस लगा है, तो हमको वर्ब में एस, ईएस, आईएस नहीं लगाना है। वेयरएज अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अ स्पाइडर, वी आर टॉकिंग अबाउट वन स्पाइडर, है ना? हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमको यहाँ पे एस नहीं है तो यहाँ पे वर्ब में एस लगाना है। दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसके किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फाइन। सो अगर स्पाइडर्स यहाँ पे एस लगा हुआ है सब्जेक्ट में तो वर्ब एज इट इज रूट फॉर्म में हम लिख देंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आया अ स्पाइडर डैश वेब्स, तो आपको इधर एस नहीं है तो इधर एस लगाना है ना? इधर एस लगा हुआ है तो इधर नहीं लगाना है। बस ये आपको बैलेंस करके चलना है और इसी बैलेंसिंग को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये किस टेंस में होता है? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो बताता है जो अभी हो रहा है, टुडे के बारे में। फाइन। So I hope all of you have written the 7th one. Spiders spin webs. Now again I'm telling you, here in this sentence the subject is spiders and spiders में s लगा है, plural है, तो हम verb as it is लिख देंगे। Fine. Now I'm going to erase this and write the last sentence of this exercise. The cool breeze dash softly. And the verb given in the bracket is blow. Now, our sentence is the cool breeze, है ना? ये बेटा the cool breeze, इसको हम हमेशा क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। कभी भी इसको हम हवा चल रही थी, है ना? हवाएं नहीं बोलते, है ना? सो द कूल ब्रीज, हमेशा इसको हम सिंगुलर मानेंगे। इसको आपको याद रखना है ना? द कूल ब्रीज। अब अगर ये द कूल ब्रीज सिंगुलर है तो हम जो हमारा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है ब्लो, उसमें क्या लगा देंगे? एस। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? द कूल ब्रीज ब्लोज सॉफ्टली। फाइन। द कूल ब्रीज को हम सिंगुलर मानेंगे, इसीलिए हमने वर्ब में क्या लगा दिया है बेटा? एस। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? द कूल ब्रीज ब्लोज सॉफ्टली। फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड exercise 2. Now before I start with the third exercise, students, I would like to explain simple present tense subject verb agreement with 2-3 more examples so that आपको concept अच्छी तरह से समझ में आ जाए। So all of you have written below the 8th one of this second exercise. Now I'm going to erase the students and I'm going to explain simple present tense with 2-3 more examples and then I'll be starting with the third exercise.
2-3 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये रूल समझ में आ जाए सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट. फाइन. नाउ Now, the two examples. The first sentence is the star dash at night. In this sentence, students, the subject is the star. हमारा subject क्या है? The star, है ना? The star dash at night. और bracket में जो verb दिया है वो क्या दिया हुआ है? Twinkle. Fine. अब subject the star है. That means we are talking about one star, है ना? That means कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, इसमें एस नहीं लगा हुआ है ना, इसमें एस स्टार में एस नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हम जो ब्रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें हम एस ऐड कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, ट्विंकल में हम एस ऐड कर देंगे तो द स्टार ट्विंकल्स एट night. These are the examples for your understanding. Please do not write. You simply need to sit and understand. The star twinkles at night. यहाँ पे s नहीं है सब्जेक्ट में, इसीलिए हमने वर्ब में s ऐड किया. फाइन. ये कहाँ होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस में होता है, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. Whereas the second example is the stars. अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दी स्टार्स, इसमें आप देखो एस लगा हुआ है जो इंडिकेट करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है. अब जहां पे यहाँ पे एस लगा है तो हमको वर्ब में एस नहीं लगाना है ना. यहाँ पे एस लगा है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं लगा है तो यहाँ पे लगाना है. बस ये आपको याद रखना है. तो अब सब्जेक्ट में एस लगा है तो हम ट्विंकल रूट फॉर्म में as it is लिख देंगे. The stars twinkle at night, है ना. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वाले स्टार में एस नहीं लगा है तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया, यहाँ पे एस लगा है तो हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया. ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. और ये किस टेंस में है बेटा, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. I'll take one more example. Now, look at these two sentences. The babies dash loudly. और ब्रैकेट में दोनों में ही क्राई दिया है ना. दोनों सेंटेंस सेम है, बट सब्जेक्ट का डिफरेंस है. फर्स्ट वाले में द बेबीज डैश लाउडली, इसमें जो सब्जेक्ट है बेबीज है और ये प्लूरल है ना. और सेकेंड वाले सेंटेंस में द बेबी डैश लाउडली, इसमें क्या है, सब्जेक्ट बेबी है और यहाँ पे हम एक बेबी की बात कर रहे हैं, वेयर सेंटेंस नंबर 1 में हम बेबीज की बात कर रहे हैं ना. तो जहां पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एक से ज्यादा होगा, वहां हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज लिखेंगे. जो भी ब्रैकेट में वर्ब दिया है वो हम एज इट इज लिखेंगे. वेयरएज जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं,
वी आर टॉकिंग अबाउट वन बेबी। तब हम क्या करेंगे, अब क्राई में एज मैंने समझाया था, जो भी वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में वाई लगा होता है ना, उनको हमें चेंज करने के लिए, उनको हमको प्रेजेंट टेंस में वर्ब में डालने के लिए क्या करता है, वी हैव टू ड्रॉप द वाई एंड ऐड IES। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, द बेबी क्राइज लाउडली। यहाँ पे IES लगा था इसलिए इसमें IES नहीं लगा, है ना। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे IES लगा दिया। आपको बस ये याद रखना है। और आपको ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में S, ES या IS लगेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज लग जाएगा। दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब्स एग्रीमेंट समझ में आ गया होगा। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड विद एक्सरसाइज 2 of unit 14 simple present tense. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.